सर मुझे एक पहले मिनट का समय दीजिए, एक मिनट का समय दीजिए, आपको इंट्रोड्यूस करूँ काइंडली। सर आप माइक हो गए, आप जितना चाहें ले लीजिए। सर प्रणाम प्रणाम। आप सभी ये जान के बहुत खुश होंगे कि बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के डॉक्टर आमिर अली बट खान साहब, उससे बहुत अच्छे पहले मित्र हैं पांडा हमारे। साहब, जी जी। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ए वंडरफुल फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। आई हैड लिसनड ऑलमोस्ट द फुल लेक्चर। छोटा भाई हो सर आप? नहीं नहीं सर, क्या बात प्रणाम करते हैं आप। प्रणाम जी। सर अच्छा, मुझे बोलने दे 1 मिनट। हाँ बताएं बताएं। मैं आमिर साहब के बारे में 2 लाइन बताना चाहता हूँ ऑडियंस को। जी ऑडियंस, आमिर साहब का पूरा नाम डॉक्टर आमिर अली खान है। डॉक्टर साहब एक ट्रेंड सिविल इंजीनियर हैं और डॉक्टर साहब अर्बन प्लानर हैं। और जिस टॉपिक पे आज वो बात करने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक के मास्टर हैं वो। तो जी मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप इनको छोड़ना नहीं, इनसे आप जो निचोड़ सकते हैं सर हम लोग निचोड़ लेते सर हैं। सर सर मुझे मुझे दो मुझे मिनट, छोटा ही रहने दीजिए, मुझे छोटा दो रहने मिनट दीजिए। आमिर साहब, आमिर साहब मुझे 2 मिनट दीजिए सर प्लीज। जी सर, ओके। For the benefit of the esteemed audience today, I would like to introduce Dr. Amir Ali Khan Saab, who is a senior professor in National Institute of Disaster Management. Sir is a trained civil engineer and urban planner with PhD on urban earthquake risk mitigation. He has a postgraduate diploma in studies of geological risks from the University of Geneva. Dr. Khan has served UNDP for about 2 years as National Disaster Reduction Advisor in Uzbekistan. There he also served as chairperson of the UN Uzbekistan's Disaster Preparedness and Response Group. He was also the UN focal point on humanitarian assistance. He has varied experience in the area of disaster risk mitigation and management at national and international level for program development and management, knowledge management and communication, capacity enhancement, partnership building and networking, etc. आज वो अर्थक्वेक के संदर्भ में स्कूल सेफ्टी प्लान बनाने की क्यों जरूरत है ताकि रिस्क मिटिगेट किया जा सके, इसके ऊपर बोलेंगे। आप देखेंगे कि उन्हें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, वो इतने प्रो हैं, अपना दिल से जब वो बात रखते हैं तो आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आमिर अली खान साहब। Thank you so much for kind words, Nakul Saab and Panda Saab. It's always a pleasure to be with you. Always, always a pleasure. What I have thought is that, as I told, I am having my program slated at 11:30 onwards. So, मैं formal presentation में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है सर, What I ठीक am है। planning is to let the participant understand what is earthquake. My topic you had given to me is earthquake school safety plan. सर So instead of going formal presentation, I'm just going to talk, and I will tell them that why earthquake risk mitigation is important for the schools and other entities. So I'm just starting with this. है ना? So जी सर। you have to bear with me, and as I told, I am having this limitation. Or if the organizing team is giving me time, say half an hour tomorrow morning, I can repeat, continue my presentation tomorrow as well. It's up to you. If सर हम वो भी कर लेंगे, आप काइंडली अभी काइंडली शुरू करें सर, बिना time प्रेजेंट। is permitting to with you, नहीं नहीं बिल्कुल सर, है ना? काइंडली काइंडली करें सर, So स्टार्ट करें। so what I am going to talk is that what is earthquake? Many of us are aware that earthquakes are a big problem. It's a national problem. But before going to earthquakes, what you have to do is that India as a country is highly disaster prone. By now, you are aware about that. Especially, we are prone to earthquakes. We are prone to cyclones. We are prone to droughts, landslides, and tsunami as well. So we are having almost all things in our plate, and how to say it, we are living in the very hazard prone areas of the world where all possible hazards are there, and most of the time these hazards convert into disasters. So this is the misery. And you see, as far as earthquakes are concerned, earthquakes are happening throughout the country, but there are certain specific regions जहाँ पे earthquake आते हैं. So I'm mixing Hindi and English. Is it okay? प्लीज काइंडली काइंडली। So I'm mixing Hindi and English, and if participants are convenient, I can shift to any of these two languages. So अर्थक्वेक्स, जैसे मैंने बताया, एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं, बट अर्थक्वेक्स कहीं पे भी आ सकते हैं। एंड अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपको पता है कि हमारा कंट्री को हम 4
पार्ट्स में बांटते हैं, जोन्स कहते हैं उनको, सीस्मिक जोन्स कहते हैं। तो सीस्मिक जोन 5 इज द लार्जेस्ट, जहाँ पे सबसे बड़ा अर्थक्वेक आने की संभावना है। और अगर हिस्ट्री आप देखेंगे अर्थक्वेक्स की, तो उस इन जोन में, जोन 5 में 8+ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं। दूसरा जोन है जोन 4, जहाँ पे 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक आते हैं। 5 में 8 से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट 4 में जनरली 8 तक के अर्थक्वेक की संभावना रहती है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो ये हमारी थोड़ी सी अर्थक्वेक मैप की बात हो गई। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे, अगर पूरे डिजास्टर प्रोफाइल को देखें आप, तो पूरे कंट्री में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। जैसे अभी आप देखेंगे बाढ़ आई हुई है कई जगह पे, साइक्लोन अभी हमें छूके गए हैं। अर्थक्वेक इज ए कांस्टेंट फेनोमेना। अगर आप लोग कुछ ध्यान रखें तो मिजोरम में एक स्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है आजकल, जहाँ पे 4 मैग्नीट्यूड और उससे ज्यादा के बहुत सारे अर्थक्वेक आए हैं छोटे ड्यूरेशन के बीच में। एंड पीपल आर रियली स्केर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन इज रियली स्केर्ड, एंड दिस इज द करंट सिनेरियो। और अभी रेनी सीजन शुरू हो गया है, सो लैंडस्लाइड सीजन इज आल्सो स्टार्टिंग। लैंडस्लाइड अभी पुणे में कल परसों हुआ है हेवी रेन से। और इस सब के साथ साथ कोविड हमारा कॉन्स्टेंटली पिछले 6-7-8 महीने से चल रहा है। सो इस सिनेरियो में हाउ टू कोप अप एंड how to schools have to cope up, so many things have already been taught. Nakul Saab has discussed about school safety yesterday, school safety plans yesterday. So I'm just concentrating on earthquake part of school safety. I'm not going in detail about the complete school safety plan, and I'm just trying to focus on that. But before that, I would like to explain something related to earthquakes. What is an earthquake? Earthquake is just the shaking of earth. मैं चलता हूँ उससे भी शेक होती है, गाड़ी चलती है उससे भी शेक होती है। अगर आप ब्रिज पे खड़े हो जाएं तो आपको महसूस होगा कि आपके यहाँ पे शेकिंग हो रहा है। बट जब बड़ा अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक जो रियल सेंस में कहते हैं, इस शेकिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, मेरे चलने से भी शेकिंग होती है। अगर इंस्ट्रूमेंट आप लगा देंगे तो मेरी शेकिंग भी ऑब्जर्व हो जाएगी। बट जब वो नीचे से अर्थक्वेक जनरेट होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के जरिए अर्थक्वेक होता है, तो उसको रियल सेंस में हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक में होता क्या है? अर्थक्वेक में जनरली जब अर्थक्वेक आता है तो खासतौर से अर्थक्वेक की एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक है, those buildings which have not been constructed using earthquake safety building codes are going to be damaged. It is as simple as I said. So earthquake safety लाने के लिए आपको क्या करना है? earthquake safe structures बनाने पड़ेंगे। और इसमें क्या होता है, आपके मकान होते हैं वो भी डैमेज होंगे, आपका जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, गांव है, शहर है, सब जगह पे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां पे अर्थक्वेक में डैमेज हुआ है। सो यू कांट एस्केप with the earthquake unless you prepare yourself for earthquake safety provisions in your building. So that is one of the requirements. I will keep on discussing about this as well. So buildings पे होता है, आपकी लाइफ लाइन्स पे होता है, लाइफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है। जैसे आप बात करें आपका आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन, वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन टेलीकम्युनिकेशन। पहले हमारे कुछ नेचुरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते थे, अभी तो सब मोबाइल लेके घूमते हैं। और मोबाइल का डिपेंडेंस कहाँ पे है? उसकी चार्जिंग पे। तो अर्थक्वेक में आपका मोबाइल टावर को भी डेंजर जोन में है, आपका इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इज आल्सो इन डेंजर जोन। सो आपका जो लाइफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों अर्थक्वेक के हिसाब से डेंजर जोन में है, अनलेस एंड अंटिल यू मेक देम डिजास्टर सेफ और अर्थक्वेक सेफ। सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच एवरी वन ऑफ अस इज फेसिंग दीस डेज। और अर्थक्वेक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बहुत सारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आप जाइए, आपको बिल्डिंग्स के ऊपर ट्रांसमिशन टावर नजर आ जाएंगे। सो अगर वो बिल्डिंग ही सेफ नहीं बनी हुई है, उसमें अर्थक्वेक सेफ्टी के प्रोविजंस प्रॉपर्ली नहीं लगे हुए हैं, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि वो टावर आपका सर्वाइव करेगा? और उसका भी डिजाइन होता है, वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर से इंटीग्रेट होता है नहीं होता है। देयर आर होल लॉट ऑफ निटी-ग्रिटी व्हिच हैज टू बी कंसीडर्ड फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ दोस लाइफ सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस पहाड़ी सिनेरियो में आप देख लीजिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, इधर नॉर्थ ईस्ट पूरा है, सिक्किम है। उसके अलावा घाट्स हैं, मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप केरला में चले जाइए, जहां पे भी जाएंगे आपको घाट्स मिल जाएंगे, प्लेटोज मिल जाएंगे। तो वहां पे ब्रिजेस लगे हुए हैं, कलवर्ट्स लगे हुए हैं, कलवर्ट्स तो सब जगह पे हैं, नदियां सब जगह पे हैं। तो अगर आपने ब्रिजेस को ठीक से डिजाइन नहीं किया है, एग्जीक्यूट नहीं किया है, अभी आपने बिहार का एग्जाम्पल देखा होगा, बाढ़ में 6 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ है ब्रिज, वो बह गया। सो अगर
बिहार का अगर केस ले लें, बिहार इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स एज वेल एज फ्लड्स. सो आई डोंट नो how to conclude it. So you have to go for multi-hazard zones, and you have to go for multi-hazard approach for constructing your buildings, including school buildings, including your hospital. So you have to go for that. Then as far other things are concerned, earthquake में होता क्या है बेसिकली? earthquake में दो तरह के हैजार्ड जनरली आपको मिलते हैं. earthquake में एक तो आपके यहाँ पे प्राइमरी शेकिंग होती है. प्राइमरी शेकिंग क्या है? earthquake में जैसे मैंने बताया, देयर आर टू टाइप ऑफ हैजार्ड्स. वन इज शेकिंग एंड नंबर टू इज सरफेस फॉल्टिंग. शेकिंग में क्या होता है? शेकिंग में आपकी जमीन हिल रही है, और अगर आपका मकान उस शेकिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बना है तो आपके मकान में नुकसान होगा पक्का. दिस इज फॉर श्योर. सो यू हैव टू construct, build your house with the assistance of an engineer, qualified method, so that your house can face that shaking safely. Then number two is your house, that surface faulting. What is surface faulting? Surface faulting is where your makan is located on certain location where some settlement is taking place, some जमीन फट रही है, उसमें नुकसान हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगी. आपने देखा होगा अर्थक्वेक में सारे फेनोमेना होते हैं. सो अर्थक्वेक सिस्टम चल रहा है. सो अर्थक्वेक में ये दो टिपिकल फेनोमेना, बट ये जब दो टिपिकल फेनोमेना होते हैं, दे लीड टू अदर फेनोमेना एज वेल. सो शेकिंग इज लीडिंग टू यू to landslide. Shaking is leading to your post-earthquake fires. Shaking is leading to your liquefaction. Liquefaction I am going to explain. Shaking is leading to tsunami. And ये देखिए, इन प्राइमरी हैजार्ड, शेकिंग, थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं? सॉरी सर, एक मिनट, एक नकुल जी. हाँ नकुल जी, सर देखिएगा एक दो माइक शायद ऑन है, तो आमिर साहब को तकलीफ हो गई प्रेजेंटेशन देने में. प्लीज आमिर साहब बोलिए सर, प्लीज बोलिए. हाँ, सो जैसे मैंने बताया, अर्थक्वेक में क्या होता है, आपका प्राइमरी हैजार्ड है शेकिंग. शेकिंग इज लीडिंग टू योर लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स आर ब्लॉकिंग योर रिवर्स. वो रिवलेट पे टेम्परेरी डैमिंग हो गई. अब जब वो डैम फटेगा तो क्या होगा? वो फ्लैश फ्लड आ जाएगा. So that is leading to tertiary hazard. So primary hazard leading to secondary and secondary to tertiary. आप देखिए जापान वाला एग्जांपल देखिए, जब न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ 2010 में, तो अर्थक्वेक आया, उसने बहुत बड़ी सुनामी जनरेट की, उससे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट अफेक्ट हो गया. सो इट कन्वर्टेड न्यूक्लियर डिजास्टर. सो कैस्केडिंग इफेक्ट. सो आप देखेंगे कि एक डिजास्टर से, एक अर्थक्वेक से कितने सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं. और आप देख, जैसे मैंने लैंडस्लाइड का बताया, तो लैंडस्लाइड इटसेल्फ इज अ बिग डिजास्टर, एंड अर्थक्वेक के केस में इट बिकम्स मोर सीवियर. अर्थक्वेक है, उसकी इंपैक्ट लैंडस्लाइड हुई, लैंडस्लाइड आपको नुकसान कर रहा है. पोस्ट अर्थक्वेक फायर, आप दिल्ली का केस ले लीजिए, यहाँ पे गैस सप्लाई इज आल्सो थ्रू पाइप सप्लाई. सो अगर पाइप इज बर्स्टिंग, सो गैस इज कमिंग. आपका फ्यूल, नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो फ्यूल सप्लाई पाइपलाइंस है, सारे कंट्री में फ्यूल सप्लाई पाइपलाइंस आर देयर. सो वो बर्स्ट हो गए, अगर वो प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं किए तो क्या होगा? Then liquefaction में क्या होता है? अगर आपकी your location, it's a very important and critical aspect for your school safety as well. That location plays. आमिर साहब, yes आमिर please. साहब एक मिनट, आपकी आवाज इको हो रहा है. अच्छा, तो what shall I तो do? नहीं करना कुछ नहीं है, या तो कोई और सिस्टम वहां पे ऑन है, और नहीं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट बोले, कंप्यूटर में आवाज आएगी. वो शायद ब्लूटूथ से हो रहा है, एक बार करके देखें. बट ये तो रहेगा ही. मोबाइल बंद कर दीजिए, आप मोबाइल बंद कर दीजिए अपना केवल. नहीं, मेरे दो सेट चल रहे हैं. मेरा मैंने बताया ना, दूसरी क्लास का भी ऑन है. तो इसीलिए एक सेट बंद कर दीजिए आप. नहीं, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हैं. देयर इज नो क्लैश. इसीलिए इको आ रहा है, वाइब्रेशन से इको आ रहा है. एक को So just wait for a minute. Let me put off my fan as well. Just one minute. हाँ, थैंक यू, आपने इतना पेन लिया आमिर साहब. अब अभी ठीक हो जाएगा. वही इको आ रहा था. अच्छा,
हो सकता है ये फैन का थोड़ा सा होगा। तो मैं जो बता रहा था आपको, अर्थक्वेक से रिलेटेड हैजार्ड जो है वो एक शेकिंग है, एक सरफेस फॉल्टिंग है। शेकिंग इज लीडिंग टू वेरियस हैजार्ड, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन क्या होता है? लिक्विफेक्शन में जब आपकी जो सॉइल है और उसमें वाटर टेबल ऊपर है और सैंडी सॉइल है, दरिया के आसपास का इलाका होता है, वाटर बॉडीज के आसपास का इलाका है, कंडेंस हो जाती है, डेंसिफिकेशन हो जाता है, तो पानी ऊपर आ जाता है और जमीन जो सर आप इधर साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपकी। कंटेंट है तो वो नीचे हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपका बिल्डिंग है दैट इज डिफरेंशियली सेटल हो जाता है, या पूरी की पूरी सिंक हो जाती है, वो पूरी की पूरी ग्राउंड में चली जाती है। देयर आर सेवरल इंसिडेंसेस। आवाज अब नहीं आ रही है आमिर साहब आपकी। सर माइक को पास रख दीजिए थोड़ा सा। हाँ सर अब आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है ऑडियंस के पास। अब बताइए भाई, इज इट ओके? हाँ अब बेहतर है, अब बेहतर, बोलिए सर। सो मैं बता रहा था लिक्विफेक्शन के बारे में। लिक्विफेक्शन में क्या होता है, जो वाटर बॉडीज के पास की जगह है वो ड्यू टू शेकिंग वो कंसोलिडेट हो जाती है, वाटर टेबल का जो पानी है, वाटर कंटेंट जो है वो ऊपर आ जाता है, तो उसकी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी लूज कर देती है। उससे क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर रखा हुआ है सो वो नीचे धंस जाता है। सो इज इट ओके आशीष साहब? हाँ बोलिए सर, प्लीज। ओके सो उससे क्या होगा, वो डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, आपकी बिल्डिंग में दरार पड़ जाएंगी, आपकी बिल्डिंग सिंक हो जाएगी। और मैं बता रहा था इंडोनेशिया का एग्जांपल, अभी 4-5 साल पहले, 2-3 साल पहले वहां पे एक अर्थक्वेक आया पालो में, और 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। उसके बाद सुनामी भी आई, और उसमें लिक्विफेक्शन प्लेड सच ए ग्रेट रोल के पूरे गांव अंदर जमीन में चले गए। सो दिस इज द फेनोमेना ऑफ लिक्विफेक्शन। सो जब आप स्कूल बनाने जा रहे हैं तो आपको वो लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। जब आप अपना मकान बनाने जा रहे हैं तो आपको वो लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है। जब आप अपना सो दैट इट शुड बी ऑन फर्म ग्राउंड। सो अगर नहीं है तो उसका सॉइल ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा, टाइप ऑफ फाउंडेशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। जनरल चीजों से जनरल टाइप की फाउंडेशन आपको नहीं डालनी है, उसमें स्पेसिफिक टाइप टाइल होगी तो पाइल डालनी पड़ेगी। और यू हैव टू कंसल्ट some good structural engineer, earthquake engineer who can guide you on these aspects. So this is the thing. Then आपका दूसरे इश्यूज जो मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहता था अर्थक्वेक के संदर्भ में। अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन क्या है? अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन को हम 2-3 पार्ट में बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है? स्ट्रक्चरल मेजर्स में आती हैं आपकी स्ट्रक्चर को ठीक बनाना, चाहे वो आपका मकान हो, चाहे वो आपका स्कूल हो। सो अब हम स्कूल की बात करेंगे। सो स्कूल जनरली गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। स्कूल हर तरह के बिल्डिंग्स में चल रहे हैं आज की डेट में। अगर आप देखेंगे एवरी पॉसिबल फॉर्म ऑफ structure is hosting a school, and you have to provide all those safety measures in those schools. So what you have to do, you have to consult a qualified engineer for before constructing your school. This is the only way out in my opinion. So structure को आपको ठीक करना पड़ेगा. What are the non-structural measures? Non-structural measures are everything we are doing without structures, जिसमें हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, अल्टीमेट एम क्या है हमारा? स्कूल सेफ्टी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यू पीपल. So this is a non-structural measure to achieve the target of earthquake risk mitigation or disaster risk mitigation. So we will achieve this. स्ट्रक्चरल मेजर्स, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। और क्या आएगा इसमें? लैंड यूज प्लानिंग, जो मैंने बताया, आपकी बिल्डिंग कहां पे लोकेट होगी, वो वाटर बॉडीज के पास होगी, वो वाटर बॉडीज से दूर होगी, वो पहाड़ों पे होगी, वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में होगी, वो फ्लड प्रोन एरिया में होगी। मैं स्कूल सेफ्टी पे काम करता हूं और बहुत दिन से काम कर रहा हूं, और मैंने बहुत प्रोग्राम किए नेशनल लेवल पे स्कूल सेफ्टी के। व्हेन आई इंटरेक्ट विद द प्रिंसिपल्स, दे से कि फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स इन सेवरल प्लेसेस पीपल हैव टोल्ड मी, गवर्नमेंट अलॉट दैट land which is not suitable for construction of any type. So वो कभी फ्लड प्रोन एरिया में दे देते हैं, कभी वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में दे देते हैं, जो अनसेफ होती है। So ideally you have to decline for such type of land. So land use plays a very important role where your building is going to be constructed. Then capacity building. Capacity building is very critical. And last but not the least is your
retrofitting. What is retrofitting? Retrofitting is providing additional strength to existing structures to face future disasters properly. So जो भी आपका बिल्डिंग बना हुआ है उसको आपको इवेलुएट कराना पड़ेगा किसी क्वालिफाइड अर्थक्वेक और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, और उसके बाद क्या करना है, उसमें आपको कुछ प्रोविजंस डालने पड़ेंगे. और रेट्रोफिटिंग दो तरह की होती है, एक स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग होती है और एक नॉन स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग होती है. स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग में जिसमें जो आपका मेन स्ट्रक्चर है, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम दो भाग में बांट सकते हैं. One is structural component of the building, another is non-structural component of the building. Structural component of the buildings are those components which help us in transferring the load of the building to the ground. जैसे अगर आरसीसी बिल्डिंग की बात करें जिसमें स्लैब है, आपकी beams हैं, columns हैं, and foundations. These are the four elements which are helping us in transferring the load of the building to the ground. इसके अलावा बिल्डिंग में जो भी चीज रखी है, चाहे वो आपकी टेबल है, फर्नीचर है, अलमीरा है, किचन का सामान है, टीवी है, फ्रिज है, everything is non-structural in nature. They are not contributing in transferring the load of the building. So you have to retrofit both of these two types of components of the building. So your first component is structure. Structure आप कर नहीं सकते, उसके लिए आपको qualified engineers को contact करना पड़ेगा. So then नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हम फॉलिंग हैजार्ड्स भी कहते हैं. आप अपने स्कूल में देखिए, अपने घर में देखिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स व्हिच कैन फॉल ड्यूरिंग द शेकिंग ऑफ द अर्थक्वेक. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, यू हैव टू फिक्स देम. योर टीवी, योर फ्रिज, योर वासेस, योर किचन गुड्स, योर पेंटिंग्स. मेरे ऊपर भी एक पेंटिंग लगी हुई है. so many things are there which can fall during the shaking. So you have to take the proper precautions so that things should not fall. So this is the only thing you can do. And how to do that? यहाँ पे जैसे अलमीरा रखी है, अलमीरा दरवाजे के पास रखी है, वो गिरेगी तो क्या होगा, आपका एग्जिट भी ब्लॉक कर देगी. आपके यहाँ पे शीशा लगा होगा, खिड़कियों पे शीशा लगा होता है, बहुत सारे घर में शीशे लगे होते हैं. शीशा शेकिंग होगी, खिड़कियां, दरवाजे, वो सब शीशा टूट जाएगा, चटकेगा, वो गिरेगा, आपको इंजर करेगा. करना क्या है, आपको करना यह है कि उसके ऊपर एक जो कार की जो विंडो पे थिन शीट लगाते हैं लेमिनेशन वाली, वो लगा. दैट्स ऑल. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो प्लास्टिक शीट लगा दीजिए, सेलो टेप लगा दीजिए, जिससे कि वो चटके भी, अगर चटक रहा है तो एक तो चटकने में उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और अगर चटकता भी है तो नीचे नहीं गिरेगा. टीवी का क्या करना है, टीवी पे स्टेप लगा के उसको फिक्स कर देना है. अगर वो वॉल से लगा हुआ है तो उसको गिरने से बचाने के लिए इस तरह के हुक्स लगाने, सो दैट इट शुड नॉट फॉल. फ्रिज को क्या करना है, फ्रिज को भी आपको ब्लॉक कर देना है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आपके किचन में इतने सारे आइटम्स हैं, उनका क्या करेंगे. आप अब स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में आ जाइए. आपकी लाइब्रेरीज आर देयर. आप अपनी लाइब्रेरी में जाइए, देखिए क्या हाल है वहां पे. लाइब्रेरी में किताबें कहाँ रखी हैं, किताबें कबर्ड्स में रखी हैं. क्या कबर्ड गिरने के लिए तैयार हैं अर्थक्वेक शेकिंग में, सीवियर शेकिंग में? अगर नहीं है तो उसका क्या करना है, उनको जमीन से फिक्स करना है. दीवार के पास है तो दीवार से फिक्स करना है. अब उसमें किताबें रखी हैं, किताबें ऐसे डोलेगा तो क्या होगा, वो किताबें भी गिरेंगी. तो किताबें गिरने का क्या इंतजाम करना है, एक सिंपल स्ट्रिंग लगा दीजिए. तो कुछ ना कुछ आपको आउट ऑफ बॉक्स सोच के कुछ करना है. आप लाइब्रेरी, अपने केमिस्ट्री लैब में चले जाइए या दूसरी लैब्स में चले जाइए. वहां पे क्या करेंगे, केमिकल्स रखे हुए, वो भी फॉलिंग हैजार्ड है, वो गिरेगा, आग भी लगाएगा. अब आग की बात आ गई. आप अपने स्कूल में देखिए, अपने घर में देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स आर देयर और नॉट? आर यू यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर्स? हैव यू टेकन केयर ऑफ दैट पोस्ट अर्थक्वेक फायर्स? केमिकल रिएक्शन होगा, आग लगेगी, क्या स्कूल में है? और है तो वो रिफिल कब हुआ था? इज इट रेडी टू यूज? किस किस को यूज करना आता है? कभी आपने वो ड्रिल करवाई है अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को, अपने फैकल्टी को, अपने? You have to take a call on this. So start investing in those smaller things. Then are you aware about do's and don'ts for earthquake safety? बताइए, are you aware? आपने कभी ड्रिल किया है स्कूल में? अगर नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए. अभी दे रहा है दरस्तायत. So start doing those drills. डूज एंड डोंट. सबसे पहले अर्थक्वेक सेफ्टी के लिए क्या करना है, आप अपने बच्चों को भी सबक देना है, सबको बताना है, बी काम. अच्छा, उससे ही पहले, अर्थक्वेक से पहले क्या करना है, ये तो अर्थक्वेक की बात हो गई, बी काम. बट उससे पहले क्या करना है, अपनी बिल्डिंग को किसी क्वालिफाइड इंजीनियर से चेक कराना है, क्या हमारी बिल्डिंग अर्थक्वेक को सस्टेन करेगी, सेफ है, उससे कंस्ट्रक्शन सेफ है. नहीं है तो रेट्रोफिटिंग के प्रोविजंस करिए.
स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग इज कॉस्टली, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, बट नॉन स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग आप अपने लेवल पे कर सकते हैं. आई हैड अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. अगर आप में विल पावर है, यू कैन मैनेज एनीथिंग इन योर स्कूल्स. उसके बहुत सारे तरीके हैं. बच्चों को इन्वॉल्व करिए, एक एक 2-2 रुपए का कंट्रीब्यूशन लीजिए. जो इमरजेंसी किटिंग आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में आता है, उसको यूज करिए. देयर आर सो मेनी थिंग्स and people have used this. I know that example, and it's not a case in isolation. There are several examples where proactive headmasters have delivered non-structural retrofitting. And उसके बाद अगर आप में हिम्मत है, आप मेहनत कर सकते हैं, so what you are supposed to do is आप अपने सुपीरियर्स को लिख के दीजिए कि हमें ये करना है. नॉन स्ट्रक्चरल रेट्रोफिटिंग तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, बट अगर आपकी बिल्डिंग इज अंडर डिस्ट्रेस, सो वो करिए. अर्थक्वेक आ गया आप, तो आपका स्कूल इज रेडी. देयर आर सेवरल एग्जांपल्स जहां पे हमने रेट्रोफिटेड स्कूल्स किया, उनकी परफॉर्मेंस वाज फार बेटर, फार बेटर. सो यू हैव टू टेक ए कॉल. देन अगर अर्थक्वेक अब आता है, आप प्रिपेयर्ड है, तो लेस डैमेजिंग अर्थक्वेक. अगर आप तैयार नहीं है, तो क्या करना है? आपने ड्रिल कर रखी है, पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, तो इवैक्यूएशन इज मच इजियर. अगर नहीं कर रखी है, तो अभी से शुरू करा दीजिए, सो दैट पीपल और किड्स और बच्चे सबको पता हो कि अर्थक्वेक सेफ्टी में क्या करना है. अर्थक्वेक के बाद क्या करना है? अर्थक्वेक में एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है. अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं. बड़े अर्थक्वेक के बाद अगर आपने पहला शॉक सर्वाइव कर लिया है, बिल्डिंग सेफ है, आपको चोट वोट नहीं लगी है, बच्चों को बाहर कर दीजिए, आप बाहर हो जाइए, है ना. और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आफ्टर शॉक्स आएंगे बड़े अर्थक्वेक के बाद. सो वो करिए. अब घरों पे क्या करना है? घरों पे एक इमरजेंसी किट बना के रखिए. स्कूल में आप फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखिए. आपके फर्स्ट एड किट तो बनी जाएगी. घर पे क्या बना के रखना है आपको? उसमें आपके कुछ खाने की चीजें हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कुछ आपके पैसे, कुछ आपकी जो मेडिसिन, जो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, वो आप बात करिए. और उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थक्वेक को मिटिगेट करने के लिए, चाहे वो स्कूल कॉन्टेक्स्ट में करें, चाहे अपने घर में बात करें, आप बात करना शुरू करिए. अर्थक्वेक के बारे में बात करना शुरू करिए. दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. जब तक आप घर पे बात नहीं करेंगे, आप अर्थक्वेक को मिटिगेट नहीं कर सकते. सो बॉल इज नाउ इन योर कोर्ट, है ना. So I just conclude, Ashish Saab, here, and if given a chance, I can interact for 10, 15, 20 minutes tomorrow as well. Sure, And, definitely. We'll manage that. Okay. Yeah. So tomorrow, maybe around 10, 10:30, I will be able to spare another 10, 20 minutes slot. जी. ठीक है. So I just thank you, conclude. Amir Sorry for curtailing it in between, not formal structured presentation, but I think I am able to convey some messages. So ball is now in teachers' court, so they have to take it forward, and you have to take it earthquake seriously. Start talking about this with your kids, with your staff, with your family members, with everyone. Unless you start talking, you can't achieve the results. So start talking, and then start taking those first steps. Do's and don'ts, and first aid kit, family disaster management plan. These are the few things. School safety plan for earthquake and other disasters. So this is the thing, and I just conclude. And sorry for speaking slightly faster and not a structured one. Thank you. My class has already started and people are looking for me. ठीक है, आप काइंडली ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और हम कल के लिए भी कोशिश करेंगे कि आपका हो पाए. और बड़ा अच्छे से सर आपने समझाया कि स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल क्यों इम्पोर्टेंट है. जैसे कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इससे पहले कि कोई लॉ और रेगुलेशंस के हिसाब से चीजें हम तक पहुंचे, उससे पहले यदि हम खुद सचेत हो जाएं, जैसे आपने कहा कि एक के बारे में बात करना शुरू कर दें, तो हमें शुरुआत स्कूलों को अपने लेवल पे ये करनी होगी, ताकि रेट्रोफिटिंग जो आपने जो बड़ी तरह से आपने कहा 1 रुपए 2 रुपए लेना शुरू करिए बच्चों से, और इतने से काम हो जाएगा. जो इमरजेंसी किटी है उनकी, वो उसे यूज कर सकते हैं. तो थैंक यू सर फॉर दिस नाइस टॉक. आई एम होपफुल दैट ऑल द स्कूल्स विल बी लिसनिंग. Thank you, and sorry once again for so it's okay, I think.
So we will Thank you. continue. Or Okay. questions अगर आते हैं ना, you take the Yes, sir. questions. I can Sure, organize a sure. session on question answer Sure. for 10-20 minutes Sure, tomorrow. sure. So participants are requested to prepare their questions, and we can have direct discussion on questions tomorrow. Okay. ठीक है? Thank you, sir. Thank you. I'm just leaving the meeting now. Thank you. Bye. And bye. And thank you to the organizing team for providing this opportunity. Ashish Saab and Nakul Saab, old friends and old colleagues. So thank you so much for providing this opportunity. And we will continue discussion. Thank you. It's always our privilege, sir, to have you here. Thank you, sir. Thank you. So, without taking much time, I would like to request Professor Shekhar from National Institute of Disaster Management to speak about stampedes and related school safety issues, which is very, very important aspect with respect to disaster risk reduction. Sir is assistant professor in Vanadium. He is a postgraduate with diploma in computer applications. He has been associated with the institute for more than 20 years now. He is very senior here, right from the very beginning. He is here. And sir is pursuing his PhD as well in disaster management, and hopefully